अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا تیسرا عظیم القدر مہینہ ربیع الاول، آج اس کی 9 تاریخ ہے، منگل کو 12 تاریخ ہے. اس حساب سے اگلی جمعہ میں ربیع الاول کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا تذکرہ 7,000 سال کے آغاز پر خاندان بنو قریش میں سلسلہ نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور 7,000 سال کے آغاز تک اور آپ کا سب سے خاندان قریش میں عالی نسب میں ہونا، اگلی جمعہ میں ان 2 باتوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک 8,450 سال پورے ہو گئے اور 8,451 سال کا آغاز ہوا، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل والی مجلس میں ذکر کر رہے ہیں. آپ کی ولادت بسعادت پر یہاں تک تذکرہ ہوا تھا. آپ بی بی آمینہ کے بطن میں تھے. ایک قول کے مطابق 2 مہینے پہلے ولادت کے خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اپنی عمر شریف کے 23 یا 24ویں سال میں. کوئی بڑی عمر نہیں، 23 یا 24 سال کی عمر جناب خواجہ عبداللہ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی ہوتی ہے اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے. اس کے 2 سال پہلے خواجہ عبداللہ کا عبد المطلب کے حکم پر مدینہ کے سفر سے مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے واپسی کے موقع پر کھجوروں کی خریداری کے لیے تشریف لے گئے تھے اور جناب خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ بی بی آمینہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور ولادت نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عالم میں اور بی بی آمینہ کے گھر میں جن برکات کا ظہور ہوا وہ بھی ذکر کر دیا. بی بی آمینہ والدہ ماجدہ سے آقا نے 7 دن دودھ پیا.
दूसरे 7 दिन अबू लहब की बांदी सुवैबा से दूध पिया, जिनसे हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दूध पिया था। और उसके बाद ये सआदत हजरत हलीमा सादिया के यहां आई। अब उसकी कदर तफसील जिक्र करते हैं। विलादत बा सआदत, आपके जन्म के बाबत सही तरीन कौल 9 रबीउल अव्वल है, वफात 12 रबीउल अव्वल है, विलादत 9 रबीउल अव्वल की लिखी है। तो 9 रबीउल अव्वल आमुल फील के वाक़िये के 50 दिन बाद, यानी सन वाक़ियाए असहाबुल फील का पहला साल, और जिस वक्त मक्के में ये वाक़िया पेश आया था उसके 50 दिन गुजरने के बाद आप बीबी आमीना के बतन से पैदा होते हैं मक्के में जनाब अब्दुल्ला के मकान में। बच्चे को सबसे पहली जरूरत दूध की है, तो मां का दूध पिया, फिर 7 दिन सुवैबा का दूध पिया। उस वक्त अरब में दस्तूर था, देहात से औरतें आती थी और शहर के अंदर से बच्चे ले जाती थी और देहात में ले जाकर के अपने घर रखकर तरबियत करके दूध पिलाती थी। 2 वजह से। एक वजह शहर का कथित माहौल होता है, सिटियों में गंदगियां होती है, शहरों में जैसे जहां जीआईडीसी होता है आप देखते हैं गंदगी और फूलत घीच में रहना, जबकि देहातों में साफ सुथरी हवा होती है, देहातों में साफ सुथरी ग़िज़ाएं मिलती है, ओरिजिनल जानवरों का दूध, फिर बाद में तो पानी मिला देते हैं, लेकिन ओरिजिनल जानवरों का दूध देहातों में मिलता है। ओरिजिनल पैदावार सब्जियां गल्ले देहातों में होते हैं, शहरों में तो होते नहीं। शहरों में तो फर्टिलाइजर और इस तरह के कारखाने और फैक्ट्रियां होती है। तो एक वजह यह थी कि प्योर ओरिजिनल ग़िज़ाएं जो जिस्मी इंसानी की सेहत के बका के लिए बहुत मुअस्सिर है। जब ग़िज़ा साफ सुथरी होती है इंसानी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। और ये देहातों में था और आज भी है। जिन देहातों में पाकीज़ा ग़िज़ाएं होती है वहां के बच्चे भी अच्छी नशोनुमा पाते हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये कि देहातों में फसी अरबी जुबान बोली जाती थी और शहरों के अंदर मखलूत लोग होते हैं। आज बड़े बड़े शहर देखो, दुनिया भर का कचरा वहां, अलग अलग रंग, बो, नस्ल, बिरादरी, खानदान, कबाइल, अजीब अजीब किस्म के लोग बसते हैं। मुल्क बैरून मुल्क और मुल्क की मुख्तलिफ जो है बिरादरियां, समाज, सोसाइटियां आबाद होती है, जबकि देहातों में ये नहीं। आज भी अरब में जो बद्दू लोग हैं, ओरिजिनल अरबी, वो देहातों में मुंतकिल है और देहातों में आज भी वो ऊंटों पर बसेरा करना और ऊंटों में जिंदगी गुजारना और ओरिजिनल कद्दो-कामत के अरबी जो सहाबा के सिफात बयान किए गए हैं, उन सिफात के लोग आज भी देहातों में बसते हैं। तो 2 वजह से आमतौर पर देहात की औरतें शहरों में आकर के बच्चे लेती थी और शहरी बच्चे देहातों में जाकर के बचपना उनका गुजरता था। इसी रस्म के मुताबिक ताइफ से एक पूरा का पूरा वफ्द मक्का मुकर्रमा पहुंचा था। 14 दिन हो चुके थे आका की विलादत बासआदत की। 7 दिन मां का दूध पिए, 7 दिन सुवैबा का दूध पिए। अब ताइफ से एक वफ्द आया जिनमें हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बनु साद बिन बकर कबीले की थी। वो भी किसी बच्चे दूध पीते बच्चे को लेने के लिए आई थी
अच्छा, देहाती लोग शहरों में बच्चे क्यों लेने आते थे? शहरी बच्चे देहातों में क्यों जाते थे? उसकी दो वजह तो आपको बता दी। अलबत्ता देहाती शहर में क्यों आते थे? इसलिए कि शहर वाले मुतमव्विल हैं, तो कम अज कम इन बच्चों की तरबियत करेंगे तो माल मिलेगा, और यहां उनका गुजर बसर देहातों में अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से वो आती थी। हलीमा सादिया के यहां एक बच्चा दूध पीता पहले से मौजूद था, जिनका नाम अब्दुल्ला था। वो हलीमा सादिया से दूध पीता था। इनके पास एक गधा था और एक ऊंट था, लेकिन उस वक्त ताइफ में कहत बहुत पड़ा हुआ था। हलीमा सादिया के जिस्म में ग़िज़ा की कमी की वजह से ये अब्दुल्ला जो रजाई भाई जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, इनका भी दूध पूरा नहीं होता था। अब हलीमा सादिया की जुबानी सुने। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब ताइफ में कहत पड़ा और लोग मक्के में दूध पीते बच्चों की तलाश के लिए निकले ताकि इस कहत के जमाने में कुछ फरावानी हो, तो मैं भी गई। उस वक्त मेरी सवारी बहुत लाजिर थी और मेरे पास पहले से एक दूध पीता बच्चा किसी का था, रजाई, जो रजात की मुद्दत में या उनका खुद का। तो फरमाते हैं हलीमा सादिया के मेरे सीने में दूध नहीं था कि जिसकी वजह से उसका पेट भर जावे, और भूखे रहने की वजह से वो बसा औकात रात को रोता था, और उसके रोने में हम मियां बीवी दोनों पूरी रात जाग करके बैठ करके गुजारते थे। ये हालात थे हलीमा सादिया के, बराबर माइन में रखना। ये हालात हलीमा सादिया के थे। दूध पीते बच्चे का गुजर नहीं हो रहा है और फाका बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। इस फाके की इजाले के लिए ताइफ से मक्के का सफर हो रहा है, और सवारी का हाल ये है कि सारों की सवारियां तेज चलती हैं, ये सवारी तेज चलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पेट में भी कुछ जावे, और सवारी का पेट अगर भरा हुआ हो तो वह सवार को खींचने में मदद करता है। दोनों मुश्किलें हजरत हलीमा सादिया को थी। काफले के लोग कोसते थे कि इसको भगा, तेज चला, तेरी वजह से हम भी पीछे रहते हैं। सबका बर्दाश्त करती रही। शुदा शुदा ये काफला मक्का मुकर्रमा में पहुंचा। जो मालदार बच्चे होते थे वो ले लिए जाते थे, क्योंकि उसके बाप से मुद्दते रजाअत के खत्म होने पर 2 साल पर बहुत बड़े इनाम, इकराम और मालो दौलत मिलता था। तो औरतें भी उन बच्चों को तलाशती थी जो मालदार बाप के बच्चे दूध पीते हो, ताकि मुद्दते रजाअत के खत्म होने पर इनसे अच्छे इनामात मिले। बच्चे को माही का दूध पिलाना चाहिए, और दूध पीने की मुद्दत बच्चे के लिए वलवालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हवलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ। 2 साल दूध पिलाया जाता है, अगरचे 2.5 साल की गुंजाइश व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन के जरिए से साबित है। ये एक फिक्ही इख्तिलाफी मसला है। तो 2 साल दूध पिलाना चाहिए। अब हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि इन औरतों ने मालदारों के बच्चे जो रज़ाअत की मुद्दत में थे वो ले लिए। आका भी पेश किए जाते थे, तो दूध पिलाने वाली औरत पूछती थी कि इसका बाप है और उसकी कंडीशन क्या है, तो बताते थे कि ये तो यतीम बच्चा है, तो कोई लेता नहीं था। हजरत हलीमा सादिया पर भी पेश हुए, लेकिन हलीमा सादिया को कोई बच्चा मिला था। ये उनकी जुबानी बात है, जो हजरत हलीमा सादिया साहिबी मुआमला खुद अपना हाल बयान करती है। जो हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई मां है। जब मुझ पर ये पेश हुए, अंदर से मेरा दिल तो चाहता नहीं था, लेकिन खाली हाथ वापस ताइफ जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने दुर्रे यतीम को ले लिया
मेरे शौहर से कहा कि खाली हाथ बच्चा लिए बगैर वापस में ताइफ जाऊं, ये मुनासिब नहीं। आका को उठा लिया। उस वक्त हलीमा सादिया को मालूम नहीं था कि मेरी नशोनुमा में रज़ाअत में पलने वाला कायनात की हसीन तरीन जात है, जिनके सच्चे में खुदाबंद कुद्दूस सूरज चमका रहा है। ले लिया। जब जैसे ही आका का गोद में लेना था, हलीमा सादिया की छातियां दूध से भर गई और बहुत ही इत्मीनान से आका ने हलीमा से दूध पिया। और आपके रजाई भाई अब्दुल्ला ने भी शिकमशेर होकर के पिया। और दोनों जब पेट बच्चे का भर जाता है तो बच्चा आत्मा आराम से सो जाता है। हमारा आपका यही हाल था और हमारे आपके घर में पलने वाले बच्चों का यही हाल है। जब बच्चे का पेट भरता है तो वो रोता नहीं। आजकल डॉक्टर लिखते हैं हर 2 घंटे पर बच्चे का पेट मां भरे, लेकिन माओं को वो टेंशन कहां है। इस्लाम में सब है, वो फाइल में देख करके अमल करेगा डॉक्टर की, लेकिन वो मजहब को नहीं पहचानेगा। इस्लाम ने तालीम दी है। बच्चा जब पेट भर जाता है तो सो जाता है। अच्छा, पेट भर गया उसके बावजूद रोता है, ये रोना बीमारी का है, तकलीफ का है, उसका इलाज किया जाता है। इसीलिए माओं को हर 2 घंटे पर रज़ाअत की मुद्दत में और तकरीबन 6 महीने तक मैक्सिमम और मिनिमम 4 महीने तक हर 2 घंटे पर बच्चे का पेट दूध से भरने की फिक्र मां को करनी चाहिए। उसको मां कहते हैं। और मां इस तरफ तवज्जो नहीं देती, या तो बकरी का दूध तलाश करती है, या तो गाय का दूध तलाश करती है, या पाउडर का दूध तलाश करती है। और डॉक्टर भी लिखता है कि मां के दूध में जो पौष्टिक और गिजा और ताकत है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। इस्लाम का स्टडी करोगे बहुत बारीकियां नसीब होगी और मुसलमान को अपने इस्लाम पर फख्र हासिल होगा। ये किसी भी मजहब में ये तालीम नहीं। और साइंस ने जितना भी रिसर्च किया है इस्लाम ही से किया है। इसको नोट करते जाओ। हलीमा सादिया के घर में गोद में जब आका तशरीफ ले आए, पहले वही सवारी थी जिस पर पूरा काफिला कोसता था हलीमा सादिया को। उसी दराज गोश यानी गधे पर सवार होकर के जब वापस ताइफ जाया जाता है तो सबसे आगे आका के ऊपर तशरीफ लाने पर अल्लाह ने उसको ताजा मोटा फरबा कर दिया। वो ऊँटनी जिसके थनों में दूध नहीं था, पैगंबर के हलीमा की गोद में आने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस ऊँटनी को भी दूध से भर दिया और मियां बीवी ने भी ऊँटनी का दूध दोह करके शिकमशेर होकर के पिया। बरकतों के साथ ये काफिला लौटता है, इंतहाई नेमतों के साथ ताइफ की तरफ। अब काफिले के लोग कहते हैं हलीमा, क्या तेरा दराज गोश यानी वो गधा बदल गया सवारी जिस पर तू ताइफ से चली थी मक्का की तरफ, या माजरा क्या है? कहा सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। पहली सूरत में सवार हम थे, आज की सूरत में सवार कौन है? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुद्दते रज़ाअत की बरक़ात है जो 15वें दिन जाहिर हुई है आका के दुनिया में तशरीफ लाने पर। इसको भी नोट करो। 14 दिन 2 जगह हुई है, ये 15वां दिन है और 15वें दिन में इन बरक़ात का ज़हूर हुआ है जिसके नाम लेने वाले हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। जिस जात के गोद में लेने पर हलीमा की ये तकदीर बदलती हो, तो मुसलमानों ने आलम अगर उनका कलमा अपनी जिंदगी में ले ले तो क्या वो कायनात की काया को पलट करके नहीं रख सकता है? ये जज्बात पैदा करने हैं। सीरत से ये सबक सिखाया जाता है। खाली किस्सा सुन लेना मकसद नहीं है, वाकई के हकाइक और असबाब को भी ऊपर भी नजर रखो। जब ताइफ पहुंचे हैं तो हलीमा सादिया की ऊँटनी, उनकी बकरियां थी, कहत पड़ा हुआ था, कहीं भी खलियान नहीं था, चरागाहें, और जो चरागाहें थी वो सूख गई थी।
फिर भी बकरियां छोड़ते थे लोग। अब शाम को जब हलीमा सादिया की बाकी बकरियां घर आती थी तो एकदम शिकमशेर और दूध के थन भरे हुए और कहत की वजह से बाकी के भूखे जानवर आ जाते थे। इन लोगों ने कहा कि जहां हलीमा की बकरियां चरा करती हैं अपने चरवाहों से वहां तुम बकरियां चराओ, इसलिए कि ये बकरियां दूध से लबरेज होकर के आती है। आपने अब देखा होगा कि बकरी एक ऐसा जानवर है, सुबह में निकाल दो, जब शाम को वापस आती है तो उसका थन दूध से भर जाता है और दूध थनों में गिजा खाने की वजह से उसका थन भी उभर जाता है। ये जानवर के सिफात है और मालिक इत्मीनान से उसको दो लेता है। तो उनकी तो बकरियां शिकमशेर होकर के आवे और दूध से लबरेज होकर के आवे और बाकी किसी की नहीं। तो अपने अपने चरवाहों से कहा, कम बख्तों, जहां पर हलीमा की बकरियां चरा करती है उस चरागाह में जाकर के तुम अपनी बकरियां चरवाओ। लेकिन ये मालूम इनको नहीं था कि ये चरागाह की बरकत नहीं थी, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत थी। इसलिए कि जिस घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह परवान पा रहा है, कबीला बनु हवाज़िन का कबीला था, जिसमें आका 5 साल तशरीफ रखते हैं। 2 साल मुद्दत रजाअत खत्म होती है। हलीमा सादिया कानून के मुताबिक आका को अपने पास नहीं रख सकती है। उस वक्त कुरान तो उतरा नहीं था, वलवालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, उस वक्त तो कुरान उतरा नहीं था, लेकिन ज़ाब्ता यही था। अब इससे एक बहुत बड़े मसले का इस्तिंबात होता है। कुरान उकूली इंसानी और तबाए सलीमा की रियायत करता है। शायद वो मसला हम आप न समझ सकें, इल्मी बहस है, छोड़ देते हैं। खैर, कानून यही था, माए 2 साल दूध पिलाए रजाअत वाली, 2 साल पूरे हो गए। ज़ाब्ते के मुताबिक हलीमा सादिया को बीबी आमना को सुपुर्द कर देना है। लेकिन जो बरकत, जो अनवारात और जो खैर आका के 2 साल की मुद्दत में हलीमा ने देखी थी, तो हलीमा और इनके शौहर का दिल बदल गया था कि इन बरकतों को हम कैसे रुखसत कर दें उनकी मां के पास। लेकिन मां है और किसी की अमानत है तो अमानत वाले को अमानत सुपुर्द करनी चाहिए। ले गए। अल्लाह की कुदरत, मक्के में उस वक्त ताउन चला था, बीमारी चली थी। जैसे कोरोना का नाम दिया लोगों ने, ताउन चला। और इस्लाम का ज़ाब्ता यह है, जहां ताउन फैला हो वहां जाना नहीं चाहिए, और जहां ताउन में लोग गिर चुके हों वहां से निकलना नहीं चाहिए। वहां जाना इसलिए नहीं है कि खामोखा मौत के मुंह में जाने से क्या फायदा, वहां से निकलना इसलिए नहीं है कि कुदरत ने फैसला किया है ताउन में मौत का, तो दुनिया की कोई ताकत सफर इससे बचा नहीं सकता है। तो मक्के में इत्तेफाक से ताउन चला था और मक्के के लोग पसंद नहीं करते थे कि बाहरी लोग यहां आवे, और ये भी पसंद नहीं करते थे कि अपने औलाद जो रजाअत की मुद्दत में है बुलावे। गोया की बीबी आमीना भी ये चाहते थे कि मक्के से बाहर जहां भी ताइफ में है वहां रहे। हलीमा सादिया ने बहाना बना दिया, आपका बच्चा आपकी अमानत आपके हवाले। लेकिन मक्के में ताउन फैला है, अगर आप मुनासिब समझे, चूंकि वो बरकतें देख चुकी थी, तो मैं अपने पास इसको रखूं। बीबी आमना ने इजाजत दे दी। कबीला बनु हवाज़िन में आका ने 5 साल पूरे किए। फिर बीबी आमना के पास 1 बरस 2 महीने 10 दिन अपनी मां के पास रहे। आका की उम्र कितनी हुई? 6 बरस 2 महीने 10 दिन। 5 साल बनु हवाज़िन में फिर मां के पास तशरीफ ले आए, 1 बरस 2 महीने 10 दिन। तो कुल उम्र हो गई आका की 6 बरस 2 महीने 10 दिन। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, कायनात दारुल असबाब है। कोई टेका, कोई पीठ अल्लाह ने अपने पैगंबर के बाबत गवारा नहीं फरमाई। पैदाइश से 2 महीने पहले बाप को उठा लिए और हलीमा के घर कैसी तरबियत करके खुदा ने दिखाई।
6 बरस 2 महीने 10 दिन क्या उम्र होती है। मकाम अबवा में पैगंबर और वालिदा माजिदा मक्के से बाहर निकल करके बीबी आमना की वफात हो जाती है। बाप तो पहले चले गए। गौर करो बराबर इबरत का निशान। 6 साल 2 महीने 10 दिन पर वालिदा माजिदा दुनिया से रुखसत हो गई और बीबी आमना की वफात का वाकया पैगंबर की जुबानी अगर आप सुने आपका कलेजा कांप जाए। एक तो मौत 6 बरस के बच्चे ने कभी देखी न हो, जिसे ये मालूम न हो कि कब्र कैसे दी जा सकती है, और वो फिर मां की जुदाई बर्दाश्त कैसे कर सकता है। जब वालिदा माजिदा की तदफीन मकाम अबवा में हुई है और काफिला यहां से मक्के की तरफ जब रवानगी की बात होती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह 6 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में मां की कब्र पर सो जाता है और अपनी छाती मां की कब्र से चिमटा देता है और कहता है, मां इस बेसरो सामानी के आलम में, इस बेआसरा और बेसहारा छोड़कर तू मुझे कहां चली गई, तू कैसे छुप गई जमीन में, मुझे नजर भी नहीं आ रही। और जो आका ने उस वक्त तकरीर की थी बड़ी अजीब अंदाज की। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है, टेका नहीं चाहिए, सहारा नहीं चाहिए। 6 बरस 2 महीने 10 दिन में मां रुखसत हो गई। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं, आपकी तौलियत में आए, इसीलिए जब तलाकें पड़ती है या औरत का इंतकाल होता है मां का, तो तरतीब ये है अगर दूसरी शादी नहीं करनी है, बच्ची नाबालिग है तो 12 साल तक, बच्चा छोटा है 9 साल तक मां की शफकत और तरबियत का मोहताज है, मां के पास रहेगा। लेकिन अगर औरत दूसरा निकाह कर लेती है तो फिर असबाब की तरतीब से उसके यहां उसकी तरबियत होगी। और अगर खुदा न खास्ता मां बच्चलन फासिक साबित होती है तो भी तरबियत बदलती है। देखिए इस्लामी के कानून समझो, और समाज इसी पर अमल कराती है। समाज नाम इसका है, व्हाट्सएप पर चमकने का नाम नहीं है, इधर उधर करने का नाम नहीं है, नाम इसी का है। इस्लाम ये है। समाज किसे कहा जाता है? इस्लामी समाज कुरान है। देखो कदर कर लो, मैं दिल की इंतहाई जलन पेश करता हूं। मुसलमानों ने आलम जबा हो रहे हैं, आपस की ना इत्तेफाकियों से टक्कर पैदा करके जनाजे निकाले जा रहे हैं। इस इज्तिमाई ताकत को बरकरार रहने दो। सियासी और राजकीय मसाइल अपनी जगह पर, हमें अपनी जात अपनी समाज पर कुर्बान कर देनी है। इस्लामी समाज और इस्लामी वहदत और इस्लामी इत्तेहाद ये वक्त का अजीम चैलेंज है। दुनिया नफरत फैला रही है, मुसलमानों मोहब्बत फैलाओ। और मैं नहीं कह रहा हूं, अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी अभी अमेरिका के सफर में है और अमेरिका की पार्लियामेंट में मौलाना ने जो खिताब किया है बड़ा अजीब, जिस पर अमेरिका दंग रह गया कि ये बूढ़ा, ये मदनी खानदान का इस उम्र में इस्लाम की हकीकत समझाई है बड़े अजीब अंदाज में। गौतम बुद्ध के मानने वाले उनसे अकीदत रखते हैं, ईसाई उनसे अकीदत रखते थे ईसा से, यहूदी एक बहुत बड़ा मजहब अपने अपने मुतक़िदीन से आचकास और उसके बाद उनकी इबादतें शुरू कर दी। इस्लाम वाहिद मजहब है जो बंदों की इबादत से निकाल करके अल्लाह की इबादत की दावत देता है। लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। इस्लाम किसे कहते हैं? बंदों की पूजा से निकाल कर बंदों के पैदा करने वाले माबूद की पूजा की दावत दे। अब देखो दुनिया के तमाम धर्म, यहूदी, ईसाई, मैंने एक मौके पर कहा था यहूदियों में 5 जमातें थी। एक अहबार और रहबान जो सबसे बड़े पोप थे पादरी, दूसरे नंबर में खाइन उलमा और तीसरे नंबर में आरजू परस्त लोग,
और चौथे नंबर में अवामुन्नास, 5 गिरोह, पांचों 5 हलाक हो गए। आज भी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को 2 ही ताकत बचा सकती है, एक नमाज और दूसरी ज़कात। जब मुसलमानों में 2 इबादतें कायम होगी, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम और मुसलमान का बाल बेका नहीं कर सकेगी। दुनिया नाच ले कितनी ही नाचनी हो, प्रोपेगंडे कर दे इस्लाम के खिलाफ कितने ही करने हो, लेकिन बातिल पकड़ा जाता है, झूठ पकड़ा जाता है, सच हमेशा सच्चाई होता है। आजकल आप लोगों ने देख लिया, एक बात नोट करते जाओ, व्यक्तिगत चीज को जमाअती चीज न बनाओ। व्यक्तिगत मसाइल हर इंसान के होते हैं, तो व्यक्तिगत बाबत को समाज पर न डालो। समाजी मसाइल को सियासत में मुलव्वस मत करो। तालीमी इदारों को तालीमी काम करने दो, समाजी इदारे समाजी काम करेंगे, राजकीय वातावरण पैदा करने वाले राजकीय काम करेंगे। भूल मुसलमानों की यहां होती है कि इनफिरादी मसाइल को इज्तिमाई सूरत दे देते हैं और इज्तिमाई कुव्वत को राजकारण पर जाकर के मलिया मेट कर देते हैं, तब इस्लाम का जनाजा निकलता है। वरना इन दुनिया के बातिल पूजने वाले माबूद, जो किसी की पेशाबगाह की पूजा करता है, जो किसी के जिस्म नाजुक की पूजा करता है, उनकी हैसियत इस्लाम के मुकाबले में क्या है? समझो मजहब की बारीकियां। एक बहुत बड़ी इज्तिमाई ताकत हमें मिली। इस इज्तिमाई ताकत को, उसकी शान और शौकत को बर्बाद करने की एक मुनज़्ज़म साजिश 70 बरस पहले हिंदुस्तान में उसका बीज डाला था। एक तरफ देखो ना, 70 साल हुए हैं इस कोशिश के पीछे जिसका बीज 71 साल पहले हिंदुस्तान में डाला था। जब एक बीज डाला हो तो वो दरख्त बनता है, फिर जब वो दरख्त बनता है तो वो फलदार भी होता है, और वो दरख्त फलदार कब होता है? उसके पीछे मुसलसल कोशिश और मेहनत। एक बातिल के पुजारी कितनी उसके पीछे मेहनत, और मुसलमान को नमाज और ज़कात कायनात की तमाम तर मादी बातिल ताकतों से अमन दिलाने वाली, लेकिन हमारी मस्जिदों में नमाज की हाजिरी कितनी? बहुत सोचने का मकाम है। बहुत दर्द के साथ एक बात कहते हैं, हमारी शान को बाकी रखो, हमारी इज्तिमाई कुव्वत को बाकी रखो। काम करने वाले अपना काम करते ही हैं, लेकिन आजिज़ी के साथ, बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ कहते हैं, मेरे जवानों, कि हम इतने हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। एक बात कह देता हूं, हमारी जिंदगी बाकी रहे न रहे, हमारे हालात बदले न बदले, लेकिन एक बात कहता हूं, कुरान और सुन्नत छोड़ करके कोई भी राह इख्तियार मत करना। किसी ऐसे दिल जले मुआलिज के पास चले जाना। हम जो जजमेंट लेने जा रहे हैं, क्या मेरा कुरान इजाजत देता है? क्या मेरा नबी इसकी इजाजत देता है? जिस पैगंबर की पैदाइश के 15वें दिन ये बरकतें दुनिया में जाहिर हुई हो, उस नबी का दीन आज मेरे पास मौजूद है। मुझे किसी ऐरे गहरे नत्थु कहने की क्या जरूरत है? समझो, जब आका की उम्र 6 बरस 2 महीने 10 दिन की होती है, मां चली जाती है, अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में पैगंबर चला जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 82 साल की होती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का विशाल मक्के में होता है, कोई मामूली आदमी नहीं, वादी का सरदार है, पूरे अरब का सबसे बड़ा बहुत मोहतम बिशान इंसान है। लेकिन मौत है। अल मौत कासन कुल्लु नफ्सिन शारिबु, मौत का प्याला पीना ही पड़ता है। वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु, कब्र के दरवाजे से दाखिल होना ही पड़ता है। आका की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। तीसरा सहारा भी चला गया और आका की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन। अब तरतीब, जब दादा न हो तो चाचा जिम्मेदार है, चाचा जिम्मेदार है। ये किसी शिशु विहार में पलने वाली कौम नहीं, ये शिशु मंगल के हवाले होने वाले मुसलमान कौम नहीं, जिसके बाप का पता न हो, जिसकी मां मालूम न हो। मुसलमान कौम ऐसी नहीं, वो तो हमारी बेटियां जाहिर को देखकर किसी का हुस्न, किसी का माल, किसी का फुसलाना, औरत जात ही ऐसी है।
इसलिए उस पर मर्द को कव्वाम बनाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसकी तरबियत करवाई। बहुत आजीजी के साथ कहते हैं बेटियों से मोबाइल खत्म करो, पर्दों का एहतिमाम हो, इनकी हैसियत के मुताबिक इनको जिम्मेदारी दी जाए। जनाजा निकाल रहा है सऊदी सल्तनत औरत के हवाले हरम की खिदमत करके, उन बातों को चस्पा करके। ये कोई मजहब और शरीयत नहीं है, मजहब और शरीयत कुरान है, इसको नोट करना। बाद लोग कहते हैं वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, लेकिन तेरा अल्लाह क्या कह रहा है वो तो तुझे समझना है। तू बंदा तो अल्लाह का है और तुझे कब्र में जान करके हिसाब तो उसको पेश करना है, न सऊदी गवर्नमेंट को हिसाब हमको थोड़ा पेश करना है। हमको तो हमारी कब्र में जाकर के मर रब्बू का ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा सऊदिया क्या करता था, वहां तो पहला सवाल ही होगा मर रब्बू, तो कोई मसला ही नहीं, कोई चांसेज नहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, जनाब अबू तालिब आका के चचा है, अबू तालिब की कफालत में पैगंबर आता है और अबू तालिब के यहां रहता है। और अबू तालिब भी मक्के का बाअसर जी वजीह और बहुत शरीफ इंसान है, जहां तरबियत हो रही है। कोई भी अबू तालिब पर उंगली नहीं कर सकता है। आका की उम्र 12 साल की होती है। जनाब अबू तालिब मुल्क शाम का तिजारती सफर के लिए जा रहे हैं। मक्का वाले 2 सफर करते थे हमेशा, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। लिइलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताए व सैफ कुरान में है। यहां से क्या ले जाते थे, आज भी वो पहाड़ों में से झाड़ पौधे लाते हैं और वो हबशी लोग वहां बेचते हैं, आपने देखा होगा, और कहते हैं शजर मरियम, इसको ले जाओ, विलादत में आसानी होगी। हालांकि उसकी कोई सनद बनत नहीं है, लेकिन कहां है ये लोग, मक्के में। तो हम यूं समझते हैं कि हरम के मुजाविर हैं बेचारे और ये पासबानी कर रहे हैं, तो लाओ इनका खोटा भी सोने के बदले में खरीद लो। ये ऐसा ही होता था। शाम वाले समझते थे कि ये हरम के मुजाविरीन हैं। मुजाविर यानी दरगाह का पड़ोसी नहीं, अल्लाह के घर का पड़ोसी। मुजाविर का लफ्ज बदलाम है, वरना मुजाविर का लफ्ज तो बहुत मोहतरम है। जावर युजाविरु मुजावरतन, किसी के पड़ोस में रहना। ये अल्लाह के घर के पड़ोसी थे तो शाम में इनकी इज्जत होती थी। कचरा लेकर जाते थे, वो सोने में खरीदते थे, समझ करके भी, बेसमझी में नहीं। फिर वहां से गिदा बिदा खाना बाना ला करके यहां गुजारा करते थे, वरना ये तो कोहिस्तान था, तो पहाड़ ही पहाड़ थे, था क्या यहां। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां न पैदा होते तो मक्के में ये चमक दमक थी ही कहां। 12 साल की उम्र में मुल्क के शाम का सफर हुआ, मकाम तैमा पहुंचे। तैमा तो एक राहिब से मुलाकात हुई, बहेया। काफले में आका को देखा, यहूदी बहुत बड़ा आलिम था, और आका के अलामत को देख करके कहा ये बच्चा किसके साथ आया है। कहा अबू तालिब ने मेरे साथ। अगर इसकी खैर और भलाई समझते हो तो इसको मक्का वापस कर दो, इसलिए कि उलमा यहूद अगर इस बच्चे को देखेंगे तो उसको कत्ल कर देंगे। क्यों? तौरात में हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। अब उसकी एक लंबी तफसील है और उस पर एक वाकया, सफे फाड़ते गए और हर जगह मोहम्मद मोहम्मद निकला। अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो समझ सकता है। तो बहीरा ने मकाम तैबा में कह दिया, तैमा में, कि इसको वापस कर दो वरना उलमा यहूद कत्ल कर देंगे। ये यहूदी लोग कुरान की सूरह बकरा पढ़ो, इंतजार में थे। इसहाक की औलाद, इसहाक इब्राहिम का बेटा, तो इब्राहिम का एक बेटा इसहाक और इसहाक का एक बेटा याकूब और याकूब का दूसरा नाम इसराइल, और उनके औलाद को बनु इसराइल कहते हैं। इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह नखलिस्तान वाले शहर यानी खजूर के बाग वाले शहर में हिजरत करेगा और कोहिस्तान में पैदा होगा। अपनी औलाद से ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किताब में पढ़ करके जानते थे। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अपनी औलाद के बाबत आदमी को शुबा नहीं होता, लेकिन इससे ज्यादा पैगंबर को जानते थे। इन्होंने पढ़ा था
नबी आखिर ज़मा मबूस होगा और इंतजार में थे वो दिन कब तुलू हो कि मोहम्मद रसूल अल्लाह पैदा हो जाए और वो दीन का परचम लहरा दे और हम उनके हाथ पर ईमान ले आए। जब आका नबी मबूस हुए तो यहूदियों ने कहा ओहो ये तो हमारा नहीं है, हमारी समाज का नहीं है, हम तो बनु इसराइल और ये तो बनु इस्माइल में हो गया। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, कुरान कहता है वो हसद की बुनियाद थी। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, नोट करो। कोई काम करता है करने दो, और काम करता है कोई अच्छा तो उसके सपोर्टर बन जाओ, लेकिन हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम पोड़े मत निकालो, कुरान कहता है। एक एक चीज मुस्तदल्लात कुरान से है। अच्छा काम हो रहा है तालीम गाहों में, तरबियत गाहों में, समाजी इदारों में, सियासी लेवल से, बस उसके मददगार आवान और अंसार बन जाओ, उसमें पोड़े मत निकालो। यहूदी इंतजार में थे और इंतजार को आज 2055 बरस गुजर चुके हैं नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन कहा ये हमारा नहीं है, इसलिए कि ये तो बनु इस्माइल में है। क्या मतलब? इब्राहिम का एक बेटा इस्माइल था, इब्राहिम का एक बेटा इसहाक था, और इसहाक का बेटा याकूब था, और याकूब के खानदान में 6000 नबी हुए। तो हम तो उनकी औलाद है। अंदर की जलन पैदा हुई, हसद पैदा हुआ, और वो जलन ने बावजूद दलाइल देखने के और इस बात और इकरार के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानने से इनकार कर दिया। आप सूरह बकरा पढ़ो, यहूदियों की प्लानिंग, तो आज को ये सब कुछ नया नजर नहीं आएगा। एक जर्रा बराबर, एक रत्ती बराबर, मैं तो यूं कहूं एक जर्रे के बराबर भी ये नया नजर नहीं, ये सब कुछ यहूदियों ने कर लिया है। और जो कुछ हो रहा है, आपने भी एक नाम सुना है ना, इजराइल की भारत दोस्ती और भारत की इजराइल दोस्ती, ये तो सुन लिया है ना आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों, तो ये इजराइल इन्हीं की बात हो रही है। ये एक जमाना था, यहूद दुश्मन इंतहाई खतरनाक ताकत थी। अमेरिका तो बेचारा बदनाम है, और ना हकीकत में दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नचाने वाली कौम यही यहूदी है, जो बहुत आटे में नमक की मिकदार है। अभी हमारी जंग इनसे बाकी है, व्हाट्सएप में खो मत जाओ, अभी तो उनसे जंग करने की है। इसके बाद ईसाइयों से भी जंग बाकी है, और परचम इस्लाम पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले ही लहराएंगे। हालात तो आने आने हैं, ये नागुज़ीर चीज है। इस्लाम हक्कानियत और आली मज़हब है, अलबत्ता हालात का दफ़अय्यन सोच समझकर अक्ल बसीरत के साथ करना, ये इस्लाम की अजीम शान तालीम है। तो तैमा में थे अभी, तो आका कह दिया इसको वापस कर दो। जनाब अबू तालिब कुरसी है, मक्की है, मक्का वाले बूत के पुजारी थे। अबू तालिब भी बूत पूजता था, इस वक्त भी बूत पूजता था, मौत के आखिरी सांस तक इसी हाल में रहे। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान उतारा, आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, देते अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। लेकिन बूत के पुजारी इतना समझते थे कि हम अभड़ लोग हैं, ये नोट करो। बूत के पुजारी इतना समझते थे कि हम अभड़ लोग हैं, लेकिन उनके टाइम में भी भणेले यहूदी थे। ये कुरान में है, मैं नहीं कहता हूं। और इससे एक सबक की बात, उनके टाइम में भणेले यहूदी थे, और अभड़ मजहबी मामलात में भणेले से पूछता है, अपनी भाषा बोलता हूं। और यही कायदा है, अनजान जानकार को पूछकर काम करे। मेरा लेवल तालीमी है, मेरा लेवल समाज सियासी नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस काम के मैदान के मर्द अलग होते हैं, जिनका काम मैदान मारना है। और मैं तो जवानों से कहता हूं, हर सुबह मैदान में तुमको सीना तान करके खड़े रहने का मौका है। अब काहिली और सुस्ती का जमाना नहीं। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वकुम व अदुव्वल्लाह। इसका तर्जमा किसी से पूछ लेना, चलो कर ही दूं, जो होना है होगा। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन, ऐ मुसलमानों, एक टाइम आएगा जबकि तुम्हारी बर्बादी के
चर्चे आसमानों में भी होने लगेंगे, तब तुम तुम्हारी इत्तिहादी ताकत को मजबूत रखना। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वह, तुम्हारी एकता को मजबूत रखना। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, और अपने बचाव के लिए कुछ सीख लेना, खाली मोबाइल मोबाइल मत सीखना, जिससे दुश्मनों के मुकाबले में तुम बचाव कर सको। ये भड़काऊ बयान नहीं है, कुरान कहता है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। अरे घोड़ दौड़ तो सीखो, और घोड़े पर चढ़ करके कुछ चलाना तो सीख लो। कुरान ने रिबातिल खैल कहा है, और पैगंबर यूं कहता है घोड़े की पेशानी में कयामत तक खुदा ने खेर छुपा करके रखी है। मुसलमान भी पालते हैं, लेकिन आंगड़ी की जीनत। उमर तो नीचे से कुदका मार करके घोड़े की पीठ पर बैठता था, कभी पगथिये से चढ़ता नहीं था, कुदका मार करके। आज ऐसे दुनिया में है जो जमीन से कुदका मार करके 41 फुट की ऊंचाई पर जाकर के सर टकाते हैं। ऐसे लोग हैं, इनको तो पढ़ो, खाली मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना जानते हैं। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वकुम व अदुव्वल्लाह। घोड़े पर जो है लश्कर कशी और घोड़े पर जंगी तैयारी क्या करती है? तुरहिबून बिही अदुव्वकुम, अल्लाह के दुश्मनों में तुम रौब पैदा करोगे। इसको घोड़े पर चढ़ते ही नहीं आता है, तो क्या दुश्मनों के मुकाबले में ये क्या रौब पैदा करेगा? व अदुव्वल्लाह अदुव्वकुम व अदुव्वल्लाह, तुम्हारे दुश्मन और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले के अंदर तुम अपनी बचाओ और हीले और तदाबीर। पहले नंबर में मोहब्बत का माहौल पैदा करना है, नफरत के माहौल को खत्म करना है। आज दुनिया में नफरत का माहौल पैदा करके कोई कौम बरसरे इक्तिदार आकर के कत्ल कुश्त की खून की नदियां बहाना चाहती है। मुसलमान इबरत और समझदारी और अक्लमंदी से काम लेने वाली कौम है कि नफरत का जवाब मोहब्बत से देगा, गाली का जवाब फूल से देगा। लेकिन ऐसा बेवकूफ भी नहीं कि जो ना आकिबत अंदेश हो, उसके पास कुरान का स्टडी है, किस हद तक क्या करना है इसके पास नॉलेज है, मुताला है। वापस हो गए, क्यों? ये अभण थे, अबू तालिब अभण थे, अहले किताब भणेले थे। मालूम यह हुआ फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम दीन जानते नहीं हो तो दीन के जानकारों से तो पूछो। कुरान कहता है अगर दीन जानते नहीं हो तो दीन के जानकारों से तो पूछो। वो कहते हैं हम तो अनाड़ी कौम हैं, मेंगनी से लिंडी से खेलते थे। वो पहले यहाँ 7 काकरी बच्चे खेलते थे, फिर अब तो सांप सूढ़ी हो गया। 7 काकरी भी अच्छी थी, अब तो सांप सूढ़ी हो गया। अजीब किस्म के लोग, वो सांप के ऊपर खेलते हैं। ये तो कोई अकलमंदी है? सांप सूढ़ी बच्चे खेलते हैं। इसके क्या 7 काकरी खेल, सांप सूढ़ी मत खेल। अगर इसको यूं कहा जाए कि तू निशान ताक बला कंकर के जरिए से, तो उसकी उंगली में वो रमी जमरात करता है, तब उसको रमी मार उसकी तरीका सिखाया कि यूं उंगली पर रखी जावे और यूं मारी जावे, तो वहां वो जूता मारेगा, इसलिए कि उसको कंकर चलाना तो आता ही नहीं। जो कोई कम कंकर चलाना नहीं जानती है, फिर वो हथियार चलाना कैसे जानेंगी? समझदारी का मकाम है, इबरत का निशान है हमारे लिए। जवानों, मोबाइल में गुम मत हो जाओ, बहुत काम करने का बाकी है। मोहब्बत की शमा रोशन करो, नफरत और अदावत का माहौल खत्म करो, आपस में इत्तेहादी ताकत को मजबूत करो। हर एक चीज उसके नॉलेज पर हम किसी की जुबान नहीं बोलते हैं। हम गौर व फिक्र के बाद कुरानी रोशन इशारों से वो तहज्जुद के वक्त में उठ करके कुछ इबरत के निशान पढ़ करके उम्मत के सामने ले आते हैं। आप ये मत समझो कि मैंने सीखा है और मैं बोल देता हूं। मैं 2 कलाक बैठा हूं ये इतना बोलने के लिए, और एक लकीर भी आगे पीछे न हो। मेरी किताब मिला लो, एक लकीर भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर जाकर भी अगर इधर उधर हो गया तो मैं देखूंगा। जैसे मैंने एक लफ्ज बोल दिया, मौलाना समझ गए होंगे कि अब्दुल्ला पहले से दूध पीता बच्चा था, अब वो हलीमा सादिया का रजाई लड़का था या हकीकी लड़का था। इसीलिए मैंने दूसरी बात भी जब शक पैदा हो गया बोलते बोलते तो मैंने दोहरा करके इस्लाह की। आलिम की जिम्मेदारी, इसलिए कि अगर गलत बात बोली
कल क़यामत के दिन खुदा यहाँ जहन्नम की 2 लगामें पहनाएगा। उलजिम यौमल क़यामत बिलिजामिन मिनन नार, जहन्नम की 2 लगामें पहनाकर खुदा जहन्नम में डाल देगा। जिम्मेदारी है, एक जलन है, एक इल्तिमास है। नफरत का माहौल खत्म करके मोहब्बत का माहौल पैदा करो। इनफिरादी मसाइल को इज्तिमाई शान न दो। इज्तिमाई मसाइल के अंदर जान, माल, इज्जत, आबरू, वक्त की कुर्बानी पेश करो। बहुत बड़ा फायदा होगा। जब आका की उम्र 24 साल की हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मुल्क शाम का सफर किया। अब नस्तूरा राहिब बुसरा में मिलेगा और वो फिर वह आका के बाबत जो बात बयान करेगा, यहां से इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में एक ऐलान ये है, मांगरोल में दारुल हिजाज यतामा स्कूल मदरसे में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक जलसा है सोमवार के दिन ईशा की नमाज के बाद, जिसमें कुछ शायर लोग भी तशरीफ लाते हैं और मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब का बयान है और सुफियान, अदनान, नजमुल हसन, प्रतापगढ़ी भी तशरीफ लाते हैं। तो वहाँ सोमवार के दिन ईशा की नमाज के बाद जलसे में शिरकत की दावत दी है, तलबा के प्रोग्राम भी है। दारुल मरकज़ इस्लामी यह हमारे गुजरात का एक एतबार से एक माना में मुनफरिद इदारा भी है, क्योंकि हम पढ़े ही ये भरूच में, मुझे मालूम है हमारे असातिज़ा मशाइख मदरसे ने एक अलग सा काम भी किया है। मुख्तलिफ जुबान में तबलीग इस्लाम के लिए खुसूसन अंग्रेजी जुबान अरबी से एक ट्रेनिंग कोर्स कायम करके उलमा तैयार करते हैं और उन ममालिक में जहां जरूरत होती है ये हजरात मेहनत भी करते हैं और कामयाबी भी हो रही है। एक तरफ मदरसे में आलिम, कारी, हाफिज भी फारिग होते हैं और अंग्रेजी जुबान स्पेशल इसमें स्कॉलर तैयार करके दुनिया के अंदर वो काम कर रहे हैं। कामयाब शोबा है, 1.5 करोड़ का खर्चा है। हजरत मौलाना तशरीफ ले आए। दारुल मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर, जिला भरूच। तमाम साथियों से गुजारिश है नमाज से फरागत के बाद ज़कात, मिलना, सदका, खैरात के जरिए से ताआवुन करते जाएं। बात का खुलासा आप समझ गए हैं। नफरत का माहौल खत्म करके मोहब्बत पैदा करना, जिस नहज से काम हो रहा है आवान और अंसार बन जाना, और खुसूसन मेरी अपनी कोई एक भूल की वजह से किसी इज्तिमाई कुव्वत और ताकत को नुकसान न पहुंच जावे और न मैं खुद अपने आप का नुकसान साबित कर दूं और न मेरे समाज और न इस्लाम और न मजहब का कोई नुकसान मुझसे हो, इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। किसी दर्जे में काम न हो लेकिन नुकसान तो न हो। अगर काम नहीं होगा तो आने वाली नस्ल भी कर देगी, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आने वाली नस्ल नुकसान के भुगताई करने में जिंदगी पूरी कर देगी और यूं ही उम्र तमाम हो जाएगी। ये नुक्ता नोट कर। किसी दर्जे में काम नहीं हुआ तो नस्लें करेगी जिनके नसीब में है, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो उसकी तलाफी करते करते सदियां निकल जाती है, नया काम होता नहीं है और जमाना खत्म हो जाता है। ये नुक्ता नोट करोगे, बहुत इबरत का मकाम है। वहाँ करो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। समावात वलकल हम्द मिन अल अर्द वलकल हम्द मिन अमा शैत मिन शैइन बाद या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्य या क़य्यूम या रहमान या रहीम या गफ़ार या सत्तार या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत इलाही व इलाह कुल्लि शैइन इलाहा वाहिदा ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह, ये रबीउल अव्वल का महीना है। हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनते हैं। अभी हम 12 साल को पहुंचे हैं। आइंदा जुमा 24 साल के उम्र में आपका दूसरा सफर शाम और 25 साल में जो निकाह और इश्क में फर्क वो सुनेंगे। ऐ अल्लाह, आप वो करीम जात है, आप वो रहीम जात है, आपका ही फैसला चलता है, किसी का कुछ नहीं चलता है। आपने क्या चला करके दिखा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह के घर में यतीम पैदा करके आपने बता दिया। 6 साल के उम्र में माँ का सहारा उठा लिया,
बाप का दादा का सहारा 9 साल 8 साल की उम्र में उठा लिया। ऐ अल्लाह, पैगंबर पर अल्लाह ने नबूवत से पहले इससे बड़े दिन कोई नहीं आया। इसमें जिंदगी में कभी भी किसी की वोट नहीं देखी थी। सगी माँ अबुआ में मक्की से दूर जाकर के एकदम वादी में और सगला घाटी में जहां अईमन जैसी औरत साथ में है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालिदा माजिदा आमिना जब कब्र के हवाले हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कभी कब्र देखी नहीं है, कभी किसी का मौत नहीं देखा है, और सगी मौत को इस तरह के आलम के अंदर वो रुखसत करके मक्के वापस नहीं जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, मेरी मां को भी तूने अपने पास बुला लिया है। और वो कब्र से जो चिमटा है मोहम्मद रसूलुल्लाह देर तक हिचकी खा खा करके रोने लगा, है अल्लाह मेरी मां को छोड़ करके मैं कहाँ घर जाऊंगा। बड़े मुश्किल से अल्लाह अईमन ने छुड़ा करके हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को घर पहुंचाया है। अल्लाह आज तेरे नबी का दीन हमसे छुड़ा करके दुश्मन चारों तरफ से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, नफरत का माहौल कायम कर रहे हैं और हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आदम के औलाद में कलमा दावत इस्तेमाल हो रही, इजाबत इस्तेमाल हो रही है। ऐ अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तेरी मदद थी और मां को छोड़ करके मैं तूने मक्का पहुंचा दी है। ऐ अल्लाह आज हमसे दीन उस मोहब्बत का छुड़वाया जा रहा है। कोई दीन ऐसा नहीं है जिसमें मुसलमान का खुद जो होता हो, जिसमें मुसलमान को जेलों की सलाखों के पीछे धकेला जाता हो। ऐ अल्लाह अगर ये कुफ्र कामयाब हो गया अपने मंसूब हमारे ईमान का क्या होगा। अल्लाह तो हिफाजत फरमा ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए तेरे अलावा कोई नहीं था। आज तक नाम जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। दिन की हिफाजत फरमा ले, मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, बातिल के नरगों से हमें बचा ले, कुफ्र के आवानों में ज़िलज़ला पैदा कर दे। अल्लाह जब तू उनको इज्तिमाई ताकत दे सकता है तू ही इनमें अल्लाह तफरका पैदा कर सकता है। इधर उधर मुसलमान निगाह डालते हैं, ये पक्ष वो पक्ष, अरे अल्लाह के बंदे तेरा अल्लाह है और तू उठ करके उसके सामने खड़ा तो हो जा। तो मोबाइल के चक्कर छोड़ दे, तेरे रूठे रब को बना ले, तेरा रब तेरी मदद के लिए अभी तैयार है। अल्लाह तुझे इज्तिमाई ताकत दी है, कुछ नासमझी से खलफसार पैदा हो रहा है, खत्म फरमा दे, इज्तिमाई शान को बाकी रख। अल्लाह जब हमें तफरका हो जाए और हमें फूट पड़ जाए और अल्लाह हम किसी के हाथ बिक जाए, उस दिन के देखने से पहले तो अपने अंदर हमें जगह दे देना। जब तक इत्तेहादी ताकत बाकी रहे तेरी जमीन के ऊपर जीना अच्छा है। अल्लाह जब हमारी खून से होलियां खेली जाने लगे, हमारी आबरूओं के नीलाम किया जाने लगे और हम खुद अपनी इज्जतों के फर्ज छोड़ाए और उसके बाद हम दुनिया पर बाकी रहे, उस दिन की बुराई से पहले तो कब्र के अंदर ईमान के साथ जगह दे देना मेरा मौला। इज्तिमाई हुकूमत को मजबूत से मजबूत कर दे। इस मुल्क की सालिमियत को खतरा तो था ही, लेकिन अब मुल्क खतरे में है। महंगाई जवाब दे चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आराम से पैदा बच्चा करके छोड़कर चली जा रही है। एक मुसलमान खातून ने आदिल से निकाह करके हिंदू से इश्क में शादी की और खुदकुशी की और मर गई। एक मुसलमान को छोड़कर इश्क का अंजाम बद मुसलमानों के सामने है। तेरा दीन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह कुफ्र के नरगे से अगर मुसलमान दीन से कमजोर हो गया या दीन का सौदा कर दिया, अल्लाह हम दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद, मैदान में शिर्क की रुसवाई से बचा लेना। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा ले, इसकी सालिमियत खतरे में पड़ चुकी है। अल्लाह कानून का दिवालिया निकल चुका है, पास हो चुका है। जो कुछ बाकी है मुसलमाना ने आलम में और गैर मुस्लिम जो कुछ भी रहनुमा है, मजहबी, सियासी, समासी या जिनके पास इक़्तिदार है, जिन्हें तूने अक्ल बसीरत दी है, अल्लाह उनको खूब खूब हौसला नसीब फरमा।
इनको हमदर्दी इस्लाम और मुसलमानों से नसीब फरमा। काम करने वालों को अल्लाह इत्तिहाद और इत्तेफाक की मजबूत ताकत अता फरमा। इफ्तराक और इंशिकाक और तफरकाबादी से हिफाजत फरमा। अल्लाह बहुत लोग परेशान है, माश की तंगियों के शिकार है। एक पूरे गांव से शिकायत है कि जिसमें 70% काम करने वाले बेकार बैठे हैं। अल्लाह जो कल देने वाला हाथ था आज वो लेने वाला हाथ बन चुका है। ये कयामत की अलामत है, ये तेरा अज़ाब उतर चुका है। हम दुश्मनों की शिकायतों तो गाते हैं, लेकिन तुझे जो नाराज किया है बोला, जब गुनाह आम हो जाते हैं तो रोजी की बरकतों से तो महरूम कर देता है और तंगियों में मुब्तला कर देता है। कौन गुनाह नहीं हो रहा है? शराबे बकसरत बेची जा रही है, पी जा रही है, कबार बाजियां खेली जा रही है, सट्टे खेले जा रहे हैं, अजीब अजीब कोहराम मचाया जा रहा है। ऐ अल्लाह तौबा कर लेते हैं, माफी की भीख मांग लेते हैं। अब बहुत ज्यादा तौबा को कबूल करने वाले अल्लाह, आज तेरे नबी का जिक्र खैर हुआ है। आज 9 रबीउल अव्वल है, इसमें नबी दुनिया में तशरीफ लाया है। अल्लाह तुझे विलादत बासआदत का वास्ता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला जो अबुआ में मां छोड़ करके मक्के आया है। अल्लाह तू हमें तन्हा न छोड़, फिर भी तूने मोहम्मद को तन्हा नहीं छोड़ा। आज तक उनका कलमा बाकी रखा है, हमें हिंदुस्तान में तन्हा न छोड़। हमारी बर्बादी के चर्चे आसमानों में हो रहे हैं, लेकिन तू हमें बर्बाद न फरमा। हमारा तो तेरे अलावा कोई है ही नहीं, और कोई था भी नहीं, और कोई होने वाला भी नहीं। अगर तुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आज मौका है तुझे कहने का। बच्चा जब माँ खा करके आता है तो माँ को कभी उतार करके बताता है। वो बचपने में अपने इजार भी उतार देता है, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। हमें चारों तरफ से मार मारी गई है, तो तुझे बताते ही अपने दाग कोई नहीं है। ओ मुश्किल कुशा, ओ हाजत रवा, हमारी दावत भी दाव पर लग गई, हमारे मदरसे भी दाव पर लग गए, हमारी जमातें और जमीयतें भी दाव पर लग गई, और हमारे शरीयत भी थी वो भी अल्लाह तबारा का शिकार हो गई। हम तो किसी के नहीं रहे, तो कहीं गया नहीं है। अल्लाह अपने एक बहुत बड़े इस्लामी इत्तेहादी ताकत वाला शहर दिया है। हिफाजत फरमा ले मेरा रब, मेरे पौला हिफाजत फरमा ले। तुझे तनाई के लाशों पेश करते हैं जो तेरे और बंदे के दरमियान में राज है। उन आंसुओं की तो लाज रख ले, हमें दिखाला तो न बना दे। अल्लाह हमारी इज्तिमाई ताकत को तो बाकी रख दे, हमारी मसाजिद को आबाद फरमाए रख। बातिल कितना चौकन्ना है, इधर उधर से कितना एक प्लेटफार्म पर आ गया। वो अंदर कुफ्र छुपाए हुए हैं, वो अंदर दुश्मनी छुपाए हुए हैं। ऐ मुसलमानों ने आलम, तुम्हारे दुश्मन होशियार है, जरा तुम भी अपने रब से ताल्लुक पैदा करने में होशियार हो जाओ। यह वक्त तुम्हें सबक दे रहा है। अल्लाह हमारी कोताहियों को, कमियों को माफ फरमा। हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी अल्लाह निभाने की, पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी माओ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रोजगार बरकत वाला अता फरमा, आफियत वाला अता फरमा। मुल्क की महंगाई को खत्म फरमा। यही हमारे आमाल हैं, यही हमारे बुरे अमाल हैं जो हमारे हुक्काम हैं, यह हमारे गवर्नर, यह हमारे हुक्मरान हमारे बुरे अमल की सूरत में हम पर जाहिर हुए हैं। हम उनकी बुराइयां करें और उनको हम जो है कोसे, नहीं, हम अपने बुरे अमाल को कोसते हैं और तेरे दरबार में तौबा कर लेते हैं। हमारी तौबा कबूल फरमा। आज विलादत बासआदत वरूद मसूद के दिन में कुफ्र की तारीकी को आपने खत्म करके इस्लाम का बोलबाला किया था। इस मुल्क से जुल्म को खत्म फरमा करके इंसाफ का सूरज चमका दे। महंगाई को खत्म फरमा करके इस मुल्क में आफियत के फैसले फरमा दे। जिनकी रोजी के परेशान मसाइल हैं, अल्लाह उनकी रोजियों के अंदर बरकतों के दहाने खोल दे। अल्लाह हमारे मरहुमीन जो तेरी जवारे रहमत में चले गए, करवट करवट मगफिरत फरमा। जब तक जिलाए इज्जत आफियत नसीब फरमा। जब मौत मुकद्दर हो ईमान हुस्न खातिमा नसीब फरमा। मौलाना कलीम सिद्दीक की जेलों की सलाखों में है, उनके साथी अहबाब। अल्लाह एक बंदा
جس کے ہاتھ میں تو نے 25,000 غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق دی ہو اور کلمہ پڑھا ہو، یہ نردوش مسلمان عالم ربانی دائی دین آج جیل کی سلاخوں میں اپنے ساتھیوں کے سمیت ہے، اسی بھارت میں خبریں رہے ہیں، بیمار بھی ہے، آخری عمر بھی ہے، داڑھی سفید بھی ہو چکی ہے، تیرا نور لیا ہوا ہے، اے اللہ بس دستغیب سے تو رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ تجھے تو کہہ سکتے ہیں، ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مخلوق سے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال والعزت اتنے بڑے تعداد میں جمعہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کوئی گرم آنسو تو قبول کر لے، تجھے محمد رسول اللہ کے اس گرم آنسو کا واسطہ جو ابوا میں ماں کی وفات پر بہایا تھا، اس واسطے کو قبول فرما کر اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور پورے ملک میں امن و آشتی کا فیصلہ فرما دے، اور جلد از جلد بے قصور جیلوں کی سلاخوں میں محبوسوں کو رہائی کی شکلیں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔